Excellent. All right. Ready? Throw the cards in the air. When I count to 3, are you ready? 1, 2, 3. You had one job. Okay, it's not your fault. It's not your fault. I chose you. Now, before you ruined the trick, everybody's night, my whole show, and potentially their whole entire cruise, what was the car that you chose? Should I tell you? Yeah? I forgot. You had 2 jobs. What happens if we combine the metal compounds to give fireworks their colors? Here's some copper and lithium. How about sodium and strontium? Because we're not making new compounds, each metal ion emits its own characteristic color. Red for strontium, yellow for sodium, a bit of a bluish green for copper, and lithium, sort of a faint pink. While we can't force the metal ions to create different colors, we can combine all the compounds together, like in a multicolored firework, in this flame. Each metal ion giving off its own characteristic color. Reds, greens, blues. Doctor, how's my husband? I'm sorry, we had to cut his right leg. What? Yes, his right leg is, I'm just joking. We actually cut his left one. What? Yes. But the pain was in his right leg. I know the pain was in right one, but the right one, when we were cutting it, it was paining so much that he was like, ah, and we couldn't cut the right one, for God's sake. We are also doctors, we are humans, we couldn't do it. But the left one was fresh, no pain. We had to cut one, so we cut the left one. What? Yes. I'm just joking, both the legs are fine, okay? I just wanted to talk to you about his kidneys. What happened to his kidneys? In the operation, suddenly his kidneys started functioning like kidneys, which is normal for a kidney to function like a kidney. Kidney functioning like a kidney. That means kidney is normal. Yeah, all good. Why are you being so negative? It's all good. It's all good, okay? Okay, just collect his body from 2nd floor, okay? His body? Yes. His body? Yes, your husband's body is on 2nd floor. The body is sitting on a sofa waiting for you. Body is happy, breathing, laughing, you know. Body was hungry some time ago, so we gave body to eat something, and body right now is eating like yum yum. Okay, it's all good. Okay, perfect. Okay. Doctor, theater is ready. Theater is ready. Okay, theater is ready. Oh, which movie? Doctor, Operation Theater. Operation Theater. Okay, action movie. Okay, go. I'll come. Okay, perfect. Thank you, Doctor. Most welcome. I can't wait to hold his hand. Perfect. Sorry? I can't wait to hold his hand. You wanted to hold his hand? Yes, of course. You were supposed to tell me earlier. Yes, good one. Thank you. Bye-bye. So insensitive.
तो हमने पाया कि स्कूल मैनेजमेंट का जो पूरा प्रत्यय चाहे फीस के मामले में हो, चाहे किताबों के सिलेक्शन के मामले में हो, इन दोनों ही मामलों में बहुत दाग शेड है और इसमें आपराधिक तथ्य की पूरी संभावना है। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना है, जिनकी निजी स्कूलों के खिलाफ दी गई जोरदार दस्तक देश में बड़ी मिसाल बननी चाहिए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के खिलाफ इस कार्रवाई का निचोड़ यह है कि मनमानी करके फीस बढ़ाने वाले 11 प्राइवेट स्कूल को अब 81 करोड़ रुपए 21,000 छात्रों को लौटाने होंगे। 81 करोड़ 30 लाख की जो फीस है वो अवैधानिक रूप से वसूल की गई है। इस फीस को वापस करने का निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ हमने इन सारे 11 स्कूलों पे 22 लाख का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। निजी स्कूलों की मनमानी वाली लूट के खिलाफ ये वो दस्तक है जिसके बाद देश के उन दूसरे स्कूलों को शायद समझ में आए जो बच्चों का दाखिला कराकर फीस के नाम पर फिरौती की तरह लूट को अंजाम देते हैं। जबलपुर के निजी स्कूलों ने 2 अपराध किए थे। पहला, गलत तरीके से फीस बढ़ाकर वसूलना और दूसरा, नकली किताबें बेचकर पैसे लेना। ऐसा करने का इल्जाम 20 प्रिंसिपल और संचालकों पर है, जिन्हें पुलिस ने एयरपोर्ट के बाहर से और मॉर्निंग वॉक करते हुए पकड़ा। सबसे हैरानी की बात यह कि ये निजी स्कूल संचालकों ने प्रकाशकों के साथ मिलकर नकली पुस्तकों को बेचने का षड्यंत्र रचा और फिर चंद रुपए की किताबों को सैकड़ों रुपए में बच्चों को बेचने का काला धंधा खुद शुरू किया। इस तरह निजी स्कूलों ने अभिभावकों की जेब पर डाका डालने का ये तरीका आजमाकर सारी हदें तोड़ दी। जबलपुर जिला प्रशासन की जांच में ये बात सामने आई कि स्कूलों में लगने वाली 80% नई किताबों में फर्जी या नकली ISBN नंबर डाला हुआ था। ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये नंबर वही प्रकाशक अपनी किताब में लिख सकता है जो तमाम मापदंडों को पूरा कर किताबों को छापता है। लेकिन प्रकाशकों ने नकली किताबों को छापकर बाजार में बेचा। यही नहीं, स्कूल संचालकों ने फीस बढ़ाने की भी अनुमति प्रशासन से नहीं ली और ऑडिट में हेरफेर करके अपनी साजिश छुपानी चाहिए। दस्तक में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़ें पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन।
Mahabharata is what's happening inside of you, inside of every human being. So it's a representation of what's happening inside of you. Dhritarashtra is a blind king, and he's essentially your brain. The brain doesn't see anything. It perceives every sense that comes to it, which is why Dhritarashtra is a blind king, and he represents your brain. The 100 Kauravas are nothing but the negative emotions and feelings that play on this blind brain. And you know how they affected Dhritarashtra to take the decisions that he took. Now, if you want to defeat these negative influences, you have the 5 Pandavas. And the 5 Pandavas are nothing but your 5 senses. Every human being has just 5 senses. Right? Now, the question then is, who is Draupadi? Draupadi is purpose and passion. It's not enough just to have your 5 senses. It's important that the 5 senses are working together on a common purpose. In the story of the Mahabharata, Draupadi opens up her hair and says, I'm going to tie this only with the blood of Duryodhana. And she puts all the 5 brothers on one task. Right? And so that's purpose, that's passion. And Krishna is the Sarathi, the conscience, the guide. I've always, of course, been intrigued by who's Karna, because he was the eldest brother, but he ends up on the wrong side and he dies. Karna, my friends, is ego. Every individual has an ego. And if you don't kill the ego, if you think about success in your personal life or your professional life, what comes in between all the time? Somebody's ego. भाई फोन को आप किसी और से मांग सकते हो ना, किसी और से ले लो जाके। भैया मैंने सबसे मांग के देख लिया, कोई नहीं दे रहा। भैया आपने खाना दिलवाया तो इतनी मदद और हो जाती। सैम दे दो ना यार, देखो ना कितने परेशान लग रहे हैं, छोटा बच्चा भी साथ में है, दे दो ना। ये ले भाई, कर ले फोन। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी हम पहुंच गए हैं। हाँ हाँ ये नंबर, बाबूजी हमारा फ़ोन तो चोरी हो गया, ये एक भैया से लेके फ़ोन किया आपको। हाँ बाबूजी सब ठीक है। हाँ हाँ खाना खिला दिया उनको। टाइम बाबूजी, हाँ बाबूजी 11:50 हो रहा है। हाँ हाँ हम एक घंटे पहले पहुंच गए थे बाबूजी। हाँ सब ठीक है बाबूजी अब। हाँ हाँ खाना खिला दिए हैं। ठीक है रखते हैं बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और मेम साहब आपका भी खाना देने के लिए, बहुत भूखे थे बच्चे। देख कुछ बचा है खिलाने के लिए? जो भी था दे दिया। सब खत्म? हाँ। साक्षी से टाइम क्या बताया था? 11:50। 12:30 हो रखी है। यार मेरे अकाउंट से पैसे चले गए। कैसी बात कर रहे हो? बैंक स्टेटमेंट चेक करो ना। जीरो बैलेंस। इसका मतलब उसने जो कोड बताया था ना, वो टाइम नहीं ओटीपी था। ये तो स्कैम करके चले गए हमारे साथ। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके
ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा, तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है। और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने न दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। चले जाओ, यहाँ आप खड़े रहोगे तो वो कहेगा कि देंगे, वो चुपचाप आराम से देंगे। किसका बोर्डिंग है आ जाओ। हमको पता तो चल रहा है कि आगे बढ़े हैं उन लोगों के नहीं तो अपन को कहाँ पता है अपन क्या कर रहे हैं।
और बताओ बस कल मिलते हैं। मंकी ले जा। हेलो ये देखो हेलो हेलो जी भाभी जी भाभी देखो 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 हाँ B3 में आप कहाँ पर B1 और बस एकदम मस्त बढ़िया बताओ कोई बात नहीं तो उसका रास्ता कर देना मंगवा लूंगा बल्कि अच्छा है उसको बिना ऐसा फोन करते हैं ना तो अपन को पता तो चलता है कि अपन कहाँ पर है नहीं तो अपन को पता ही नहीं चलेगा मतलब क्या है कि अपन आगे बढ़ रहे हैं अपन आगे बढ़ हाँ तो इसका मतलब कि अपन आगे बढ़ रहे हैं
अरे ये नहीं क्या चलेगा। बाबा जी कहाँ गया? भी दादाजी अच्छा हाँ। पानी चला के आत्मनिर्भर है। चल गो बड़ा भाई अगर को बहुत दूर तक पहुँचे इस भैंसिया की फोटो। 39 ग्राम की भैंस आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इतना ही तो बहुत है। बाहर गए चलो गए। जेठ हमारे मारते चलो अफा रहे नहीं भाग नहीं सका। जाओ जाओ इसलिए कह रहा था शाम तो गया। घर वालों को दिखानी है ना यार भैया। क्यों आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ पर लोकेटेड हैं। अर्थ अपनी ऑर्बिट में 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है और अगर हम ये एंगल ऑर्बिटल प्लेन से मेजर करते हैं तो ये एंगल 66.5 डिग्रीज है। हेंस इसी टिल्ट की वजह से जब दिसंबर में अर्थ यहाँ होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स एक्सपीरियंस करी जाती हैं और इस पोजीशन को विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है, जहां सन की तरफ टिल्ट होने की वजह से एंटार्क्टिक सर्कल 24 आवर्स सनलाइट रिसीव करता है। वहीं सन से अवे टिल्ट की वजह से 66.5 डिग्रीज नॉर्थ के बियॉन्ड सनलाइट रिसीव नहीं होती है और इसीलिए इस लाइन के बियॉन्ड 24 आवर्स ऑफ नाइट एक्सपीरियंस की जाती है। वहीं जून में ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से आर्कटिक सर्कल में 24 आवर्स ऑफ डे एक्सपीरियंस किया जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर सन से अवे टिल्टेड होने की वजह से सनलाइट रिसीव नहीं करता और 24 आवर्स ऑफ नाइट एक्सपीरियंस करता है। हेंस आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल टिल्ट की वजह से अर्थ के सरफेस पर सनलाइट की लिमिट को दर्शाते हैं और इसे आप इस चार्ट से बेहतर समझ पाएंगे, जहां समर सोल्स्टिस के दौरान आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड सभी सिटीज 24 आवर्स ऑफ डे एक्सपीरियंस करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल पर 6 मंथ्स ऑफ डे एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट क्यों होते हैं, तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 7000 लाइक्स के। दामाद बेटी को चाय बना के दे तो कितना सुख लगता है, और बेटा बना के दे दे तो जोरू का गुलाम। विचार करिए, ये सोच है आपकी, ऐसी मानसिकता है आपकी। दामाद नाश्ता दे दे, मेरी बेटी राज कर रही है, खुद का बेटा बहू को दे दे, हाँ लगा रहे उसी के पीछे, हम तो अब कुछ है ही नहीं। ये सोच रहेगी, वो घर कैसे स्वर्ग बनेगा। बातें बहुत छोटी हैं, बातें बहुत बड़ी। वही काम बेटी के साथ हो तो अच्छा लगता है, वही काम बहू के साथ हो जाए तो बुरा लगता है। बेटा पहले भी जवाब देता था तब बुरा नहीं लगता था, और जब से शादी हो गई अब जवाब दे तो लगता वो सिखा रही है, जैसे वो सिखा रही जैसे सारी चीज उसने ही सिखाई हो। इससे आने से पहले तो तेरा बेटा अंगूठा पीता था। अभी हम रामलीला मनाते हैं, हम उस रामलीला में राम जी का नाम लेते हैं, उनके सारे जीवन काल की जानकारी देते हैं
और उससे पहले दशहरे में क्या करते हैं? आग लगाते हैं। किसको लगाते हैं? रावण को। क्योंकि उसने जो किया वो उस माफ करने योग्य नहीं था। सदियां निकल गई लेकिन हम इस बात को भूले नहीं, हम उसको आग लगाते हैं। और कल्पना करिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में रावण रोड हो, कॉलेज का नाम रावण रोड हो, शहर का नाम रावण हो। कल्पना करिए उस शहर में कौन रहेगा? तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि औरंगजेब, औरंगाबाद, ये कैसे हो गया? आपने कभी इस पे चिंता नहीं की? हमने भी नहीं की। मैं तो उनमें से हूं, मैंने भी नहीं की। हमें लगा कि दिल्ली में आए हैं, इनका नाम है तो कुछ किया ही होगा, कीर्तिमान होंगे इसलिए तो नाम होगा। मैं कहता हूं मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूं मेरे से पहले जो जो लोग इस सत्ता की कुर्सियों पे बैठे वो नालायक भी थे, अंधे भी थे, बहरे भी थे, और हमें शर्म आती है उनको अपना लीडर मानते हुए, जिन्होंने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने अजीत और जुझार के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया। मेरी बात को बुरा मत मानना, वो आपके साथ भी इंसाफ नहीं कर सकते। वो कभी इंसाफ के पलड़े में यकीन करने वाले लोग नहीं थे।